Assalamualaikum everyone. In today's video, we are going to discuss another important practical of today's video, and this practical is of physical pharmacy, and the name of that practical is to prepare to zero point 0.5 and zero point 0.1 molar solution of sodium carbonate and sodium hydroxide. So first of all, we discuss the objectives and aims. First is to understand the molarity and molar solution concept. So this is the main objective, and you also understand the preparation of zero point 0.1 and zero point 0.5 or zero point 0.1 molar solution of what? Na2CO3 and NaOH. So what is the theory? Theory is to concentration can be expressed quantitatively by many ways, as in molarity, in molality, in normality, percentage, mole fraction. I have discussed all of these terms in the experiment number 3. So you can watch this video to get the concept of all of these terms. Now we discuss the molar solution. So first of all, we define the mole. What is mole? So the molecular mass of a substance expressed in grams is called as gram molecule या gram molecular mass या simply mole. So mole को आप किस तरह से represent करते हैं? MOL से. So क्या है ये? Molecular mass of a substance which is expressed in what unit? Gram. ठीक है, the spelling of gram is wrong here, so you should correct it. So now we move on to the next page. The example is, for example, 40 gram of NaOH is equal to 1 mole. Because why? Why is due to the mole, a formula of mole is equal to mass of fluid divided by its molecular mass. So mass, if we put the mass of fluid as 40 gram and we divide its molecular mass which is of 40 gram, so it will become is equal to 1 mole. And 106 gram of Na2CO3 is also equal to the 1 mole. You can calculate it by yourself. So now we also discuss the molality in this concept. So molality is the number of molecules present in the 100 gram or 1 kg. 100 gram or 1 kg of solvent, not solution of solvent. So express हम इसको करते हैं small m से. ऐसा यूनिट is mole per kg. तो ये इसका ऐसा यूनिट हो गया. Molarity is affected by temperature and concentration. M does not change with the temperature. टेम्परेचर से ये चेंज नहीं होता है, and but M is directly proportional to the concentration. तो concentration से ये इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से ये इफेक्ट नहीं होता है. आगे कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं किसी भी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की, तो गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड. तो गिवन का मास ऑफ वॉल्यूम, रिक्वायर्ड का मास ऑफ वॉल्यूम. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड सबसे पहले हम करेंगे कि क्योंकि हमें नहीं पता कि ये NaOH है या ये Na2CO3 है, हमें नहीं पता, तो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में राइट अप कर देंगे. सो अननोन कंपाउंड के बाद हमने अननोन कंसंट्रेशन को भी डिटरमाइन करना है और डेवलपमेंट करनी है हमने डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की. सो ये इसकी एप्लीकेशन है कि एक हमें अननोन कंपाउंड को भी पता लग रहा है, उस अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन को भी पता लग रहा है जो हमें पता नहीं थी पहले, और इसके साथ साथ हमें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन में भी हेल्प मिल रही है. अपरेटस अगर इसका देखें तो आपने बीकर लेना है, स्टीरर, स्पैचुला, पिपेट्स वगैरह यूज़ करने हैं. केमिकल्स तो वही दो चाहिए, NaOH और Na2CO3. प्रोसीजर में आपने वॉश करना है ग्लासवेयर को, कैलिब्रेट करना है वेलिंग बैलेंस को. प्रिपेयर किस तरह का करना है? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं किसका? NaOH का. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 1 ग्राम अमाउंट लेंगे और उसको 50 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसको लेबल करेंगे और आपका सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा. अब हमने नेक्स्ट जो बनाना है वो बनाना है 0.1 मोलर NaOH का. तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आपने 0.2 ग्राम, हमेशा आपने जो वाटर लेना है वो आपने 50 ग्राम ही लेना है और उसको डिज़ोल्व करना है कितने ग्राम ऑफ NaOH में? 0.2 ग्राम NaOH में. ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे मोलर सोल्यूशन में, मैं आपको वैसे कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी. और अगर आपने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आप 0.53 ग्राम करके डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर और कर देंगे. एंड में आपने प्रिकॉशंस देख लेनी है कि ग्लासवेयर को क्लीन होना चाहिए, हैंडल करना है आपने केमिकल्स को केयरफुली, वेइंग बैलेंस को आपने एक्यूरेटली मैनेज करना है,
केमिकल्स को टच कभी भी नहीं करना है। कंसनट्रेटेड जो अगर एसिड है, बेस है, तो उसको अपने वाटर में किस तरह से डालना है। अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, आइडेंटिफिकेशन एंड लेबल ऑल द सॉल्यूशन एज सून एज दे आर मेड, तो आपने लेबल लाजमी करते जाना है। तो ये इसकी प्रिकॉशंस आ गई थी। अब हम इसका पेंसिल वर्क देखते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूज़ जो आई हैं ये किस तरह से आई हैं। सो आप सबसे पहले ये डायग्राम देख लो। इसमें हमने प्रिपेयर किया है 0.1 और 0.5 मोलर NaOH का सोल्यूशन। तो आपने एक बीकर लिया है, उसमें 100 ml, ये 100 ml का बीकर था, उसमें 50 ml आपने वाटर लिया और उसके अंदर आप NaOH डाल रहे हो 2.6 ग्राम का, उसको स्टीर कर रहे हो और स्टीर इट वेल एंटिल ऑल द NaOH डिजोल्व हो जाता है और एंड में हमारे पास 0.5 मोलर NaCO3 प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा, अब आपने कैलकुलेशंस किस तरह करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फॉर एग्जांपल 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो आपने मॉलिक्यूलर वेट लिखना है NaOH का 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए कितना होता है 40 ग्राम। सो 1 मोलर सोल्यूशन के लिए हमें कितना चाहिए 40 ग्राम। अब हमने कितने का बनाना है 0.5 का, तो हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो आंसर आ गया। ठीक है, अब रिड्यूस फार्मूला क्या है। अब 100 ग्राम्स जो हैं वो NaOH के इक्वल होते हैं कितना 20। 1 ग्राम कितना होगा इतने के, और 50 ग्राम कितना होगा इतने के, तो 1 ग्राम की इक्वल आ जाता है वो। ठीक है, तो ये किसका रिड्यूस फार्मूला हो गया कि कितने ग्राम्स हम लोग इसके लेंगे। अगर हम लोगों ने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, अब NaOH के पहले 0.5 बनाया था, अब NaOH के बना रहे हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है 1 ग्राम के लिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास 4 ग्राम आंसर आ गया। अब उसका रिड्यूस फार्मूले में क्या लिखेंगे हम कि 1000 ग्राम्स के लिए NaOH कितना चाहिए था, तो 1000 ग्राम के लिए भी हमें 4 ग्राम चाहिए था। ठीक है ना, बट हमने क्या करना है, हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, 1000 मोलर सोल्यूशन तो नहीं बनाना ना। तो उसके लिए 4 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.2 ग्राम। फिर हमने 0.5 मोलर बनाना है Na2CO3 का, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। तो आप 0.5 को 1.106 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 53 ग्राम। रिड्यूस फार्मूला इसका क्या होगा कि आपने 1000 ग्राम में इतने होंगे 53 ग्राम। 1 ग्राम के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 50 कर दोगे, तो आंसर आपके पास आता है 1.65 या 2.65। तो आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना कि एक्चुअली में क्या आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो हमने कैलकुलेट करना है वो है 0.1 Na2CO3। तो अब 0.1 यानी 1 मोलर के लिए कितना Na2CO3 यूज़ होता है 106। तो 0.1 के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपके पास आता है 10.6 ग्राम। रिड्यूस फार्मूले के लिए 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10.6 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए इसको डिवाइड कर दो 1000 से, 50 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, तो आंसर आपके पास आता है 0.53 ग्राम। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें 0.53 ग्राम्स आता है। रिजल्ट में आप लिख देंगे कि hence 0.5 and 0.1 molar solution of NaOH as well as Na2CO3 are prepared and labeled and observed। ठीक है, सो ये आपने ऑब्जर्वेशंस दे देनी है एंड, और जो आप लिखेंगे ना इसका प्रोसीजर, उसमें सारा आपने लिखते जाना है कि इतने ग्राम में मैंने इतने ग्राम डाला है और ये सोल्यूशन इस तरह से बनाया है। ठीक है, आपने ये जो रिड्यूस फार्मूले में जो मैथ्स निकला है ना, इसको लिखना है कि मैंने 50 ग्राम में इतना डाला है। ठीक है, तो वो था एक मोलर सोल्यूशन के लिए, आपने 50 ग्राम के लिए नहीं था, वो 1000 ग्राम्स के लिए था। हमने तो 50 ग्राम में डाला है ना, तो उसको 50 ग्राम में करने के लिए हमने ये रिड्यूस फार्मूला यूज़ किया। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करें, मैं आपको उसको ज़रूर क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लेक्चर में बात नहीं समझ में आती है, मैं आपको उसको दोबारा उसकी लेक्चर बना दूंगी और उसको दोबारा आपको समझा दूंगी। ठीक है, बट आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर एप्लीकेशन किया करें, ताकि हमें भी कोई सुकून मिले, हमें भी कोई चैन आ जाए और हमें भी कोई हौसला मिल जाए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।